हेलो बच्चों बच्चों वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके जेट आईसीआर की फिजिक्स फॉर इंग्लिश मीडियम बैच। तो फॉर जेट एंड आईसीआर लेवल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों अपना फर्स्ट टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो अपन ब्रीफली यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन को विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ सोल्व क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो बिफोर स्टार्टिंग यूनिट एंड डायमेंशन लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? a quantity which can be measured, quantity which can be measured and obeys laws of physics. तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड obeys laws of physics. Now if we classify these physical quantities, then physical quantities are of three types. These physical quantities are of three types. First one is fundamental quantities. Second one is derived, and third one supplementary quantities. So we classify these physical quantities into three parts: fundamental, or you can say basic quantities, derived quantities, and supplementary quantities. So if we talk about these fundamental quantities, बच्चों जो कैटेगराइजेशन हमने किया है उस कैटेगराइजेशन में दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से वी एक्वायर अदर फिजिकल क्वांटिटीज. सो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? दीज आर यूज्ड टू एक्वायर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यूज्ड टू एक्वायर अदर फिजिकल क्वांटिटीज. लाइक एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं फंडामेंटल में, तो बच्चों मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम. सो मास, लेंथ, टाइम, ऑल दीज क्वांटिटीज आर known as fundamental or basic quantities. Similarly, if we talk about derived quantities, then these derived quantities are acquired with the help of fundamental. तो derived में सिंपल सा पता चल गया हमें कि सब फंडामेंटल तो होगी, कुछ एक सिलेक्टेड क्वांटिटी जिनको अपन ने बेसिक बोल दिया. अब इनके अलावा जो कुछ भी बच गया दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर derived quantity. So derived quantities are those quantities which are acquired from fundamental quantities, like examples की अपन बात करें, so we can say that speed, force, energy, momentum, these all are categorized under derived quantities. Then supplementary quantities. So see, there are two supplementary quantities. One is angle of plane, and another one is solid angle. तो बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो टाइप की हो गई. एंगल ऑफ प्लेन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय थीटा और फाई, एंड सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. we'll talk about them later. So this is the simple categorization of physical quantities. Now moving on, what is a unit? So what is a unit? तो यूनिट क्या हो गई बच्चों? So unit is a standard to represent any measured value. A standard to represent any measured value which makes it meaningful. इसका मतलब क्या हो गया कि सब यूनिट किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल हो गया जो उसको मीनिंगफुल बनाता है. जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट अस से कि आपको कोई लेंथ बोल दी
कि भाई लेंथ अपने पास L इज इक्वल टू 10। सो ये 10 क्या है बच्चों? 10 तो सिंपली एक नंबर हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। Until we place any standard symbol with it, then we cannot say that this 10 is length. So जब तक बच्चों अपन यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर कुछ प्लेस नहीं करेंगे, तब तक we cannot say that this is length. So this centimeter or meter is a standard symbol which is known as unit. Now if we talk about unit system, so unit system is basically defined for fundamental quantities mass, length and time. Now categorize unit system into three basic parts: CGS system, FPS system, MKS system, and then fourth one is SI system. So there are 4 unit systems. In those 4 systems, these 3 systems CGS, FPS and MKS are older one systems, and this is SI system, International Systems of Units. This is widely used right currently. So CGS, in CGS system, this C stands for centimeter, this G for gram and this S for second. तो बच्चों जैसा मैंने अभी बताया that in unit system fundamental quantities are generally used. So C for centimeter, G for gram and S for second. It means length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. Similarly in FPS system, F stands for foot, P for pound and S for second. Clear? So in FPS unit system, length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in seconds. Similarly in MKS system, M stands for meter, K for kilogram and S for second. It means in MKS system, length is measured in meters, mass is measured in kg, kilogram and time is measured in seconds. So these are 3 basic unit systems which are based on fundamental quantities mass, length and time. Now in SI system, there are 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities, angle of plane and solid angle, जिनके लिए अपन ने प्रीवियसली बात करी यहां पर. सो इन SI system, mass, length, time, these 3 quantities are similar. Now 4 newly quantities are added in SI system. These are electric current, temperature, luminosity and amount of substance. So these 7 fundamental quantities are there in SI system. If I talk about mass, then mass is measured in kg, length is measured in meter, time is measured in second, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर. चलिए मैं सीधे सिंबल लिखता हूं यहां पर. दिस इज केजी, मीटर का सिंबल हो गया एम, सेकंड के लिए एस. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, सो इट सिंबल इज के. लुमिनिसिटी को बच्चों अपन एक और नाम से बोल सकते हैं, लुमिनिसिटी, या इसको अपन बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैंडेला and its symbol is CD. Then amount of substance, so amount of substance is measured in moles, so its symbol is MOL, mole. So this is the categorization of unit system. In all these 4 unit systems we generally use SI system. Now these days all the quantities are represented in SI unit system. So if you are given any system and you have to convert that quantity into another system, then you can use simply a relation which will be described in next slide. So now, as I was discussing earlier, that the numeric value is inversely proportional to unit.
यूनिट और यूनिट सिस्टम। तो बच्चों यहां से देखिए क्या कंक्लूजन निकला। लेट अस से न्यूमेरिक वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय n and unit system is represented by u. So from here we can conclude that higher the unit system, lower the numeric value. इसका मतलब जितना बड़ा यूनिट सिस्टम होगा उसमें न्यूमेरिक वैल्यू उतनी छोटी होगी। इस चीज को एग्जांपल से अपन समझते हैं। लेट अस से दैट मास इज 50 grams. You are given m is equal to 50 grams. So here g is small unit. ग्राम cgs में हो गया बच्चों। cgs यहां पर स्मॉलर यूनिट सिस्टम होता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू देखिए 50 है। इफ आई कन्वर्ट दिस ग्राम्स इनटू kg देन दिस न्यूमेरिक वैल्यू विल बी 50 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। तो देखिए अब इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, दिस वन, 50 इंटू 10 टू द पावर -3, एंड दिस वैल्यू इज मच स्मॉलर देन दिस value used in CGS system. So we can say that higher the unit system, lower the numeric value. And from here, if we compare two unit systems, then we can say that N1 U1 is equal to N2 U2. तो बच्चों अभी जो मैं कन्वर्जन की बात कर रहा था वो कन्वर्जन आप कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। सो ये एक चीज हो गई यहां पर। चलिए इसी के साथ अपन बात करते हैं यहां पर डायमेंशनल मेथड क्या होता है। व्हाट इज डायमेंशनल मेथड। तो बच्चों डायमेंशनल मेथड की अपन बात करें, सो डायमेंशनल मेथड इज अ मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट any physical quantity in form of powers of फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चों किसी भी क्वांटिटी को अगर अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है दैट इज नोन एज डायमेंशनल मेथड। सो लेट अस से वी हैव एन फिजिकल क्वांटिटी x अपने पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ लेट अस कंसीडर दैट fundamental quantities are mass, length and time. So place them in capital letters. Now this x physical quantity is unknown to us. So if this quantity is unknown to us, then place random powers of this mass, length and time. Let us say these random powers are a, b and c. These random powers are a, b and c. तो बच्चों यहां पर ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड these powers of fundamental quantities, these powers a, b, c, these powers are known as dimensions. So widely questions are asked from this section. अपन डिस्कस करेंगे बच्चों यहां पर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस की किस तरीके से यहां पर कॉम्पिटिटिव सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज द पैटर्न डायमेंशनल मेथड में। बच्चों ये सिंपल पैटर्न यूज होता है डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहां पर बात करूं, लाइक यू हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये जो फोर्स है, एनी टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप ईएमएफ बोलते हो, ईएमएफ को छोड़ के नेचर का जो भी फोर्स है उसके लिए ऐसा यूनिट तो होती है आपकी न्यूटन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है m1 l1 t-2. So let us calculate this dimensional formula by using any small formula. Let us say it is F is equal to ma. Here m is mass and a is acceleration. तो बच्चों मास को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। यहां पर इसकी कोई पावर नहीं है, इट मींस प्लेस पावर 1। सिंपली एसिलरेशन, एसिलरेशन के लिए बच्चों यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके लिए डायमेंशन हो गई L1 t-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बच्चों ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इट इज m1 l1 t-2 एंड ऑल द फोर्सेज इन नेचर, ईदर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एनी नेचर ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, it will be m1 l1 t-2. Now if we talk about applications of dimensional method, तो एप्लीकेशंस क्या होती है बच्चों डायमेंशनल मेथड की। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड,
तो देर आर 3 एप्लीकेशन। तो बच्चों एप्लीकेशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इट इज फॉर योर कॉन्सेप्ट मेकिंग। सो देर आर 3 एप्लीकेशंस of dimensional method. First one is to establish relation among different physical quantities. डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में बच्चों अपन रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं यहां पर। देन जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, किसी भी कोई भी एग्जांपल ले लिया, आपसे बोल दिया कि भाई टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन length of the bob and gravitational acceleration, and you have to establish relation among these quantities, then you can use this dimensional method to establish relation among these physical quantities. So this is one application. Second one is to verify correctness of any given formula. Correctness of any given formula. So suppose you are given any formula and you are asked to verify this formula with the help of dimensional method. Then what you do? For example, आपके एनसीईआरटी में बच्चों एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोल दिया शो दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच इज डायमेंशनली करेक्ट। सो सिंपली अब ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव पैटर्न का हो गया। अगर आपके कॉम्पिटेटिव सेक्शन की बात करूं तो बच्चों एमसीक्यूज में इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच है, तो यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका डायमेंशनल एनालिसिस करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और राइट हैंड साइड में जो है उसका आपको डायमेंशनल एनालिसिस करना है। अगर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपके होते हैं इक्वल, इसका मतलब तो वो है आपका डायमेंशनली करेक्ट। तो बच्चों ये हो गया आपका एक पैटर्न। नेक्स्ट जो थर्ड इसका एप्लीकेशन होता है, थर्ड एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। वन सिस्टम टू अनदर मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको मेजरमेंट करना है और उसमें उस मेजर्ड वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम आपको कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो इसके लिए भी मैंने आपको रिलेशन बताया था दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। सो फ्रॉम हियर यू कैन यूज दिस रिलेशन n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो दिस रिलेशन इज जनरली यूज्ड to convert any measured value from one system to another system. So बच्चों ये होते हैं इसके एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। इसी में अगर अपन बात करें आगे कि सब अगर डायमेंशनल मेथड के इतने सारे यूज हैं तो किसी चीज की जितनी ज्यादा अच्छाई होती है बच्चों उसमें बुराई भी उतनी ज्यादा होती। तो अपन बात कर लेते हैं यहां पर इसकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस क्या होती है डायमेंशनल मेथड की? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो बच्चों डायमेंशनल मेथड में देखिए लिमिटेशंस क्या होंगी, बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लिमिटेशन की मैं बात करूं तो अभी मैंने एप्लीकेशन बताया इसका, टू स्टैब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो इफ वी स्टैब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज देन देयर विल बी ए कांस्टेंट and value of that constant cannot be calculated by this dimensional method. So first limitation ही यही हो गई इसकी, value of constant cannot be calculated by this method। ये अपन ने बोल दी बच्चों यहां पर फर्स्ट लिमिटेशन। इफ वी टॉक अबाउट सेकंड लिमिटेशन, देन सेकंड लिमिटेशन इज, अभी बच्चों अपन ने बात करी यहां पर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं इनकी डायमेंशंस को हम मेजर नहीं कर सकते। डायमेंशंस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, ये एक यहां पर इसका ड्रॉबैक हो गया। थर्ड बच्चों यहां पर अपन लिमिटेशन बोलते हैं, देखिए थर्ड लिमिटेशन में अपन ने बोल दिया इफ एनी क्वांटिटी
डिपेंड्स ऑन more than 3 other quantities, इस सिचुएशन में भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज जनरली बच्चों अपन जब भी यहां पर डिपेंडेंस की बात करते हैं तो हम लेते हैं यहां पर पावर्स ऑफ एम एल एंड टी, मास लेंथ एंड टाइम की अपन पावर्स कंसिडर करते हैं। एंड मास लेंथ एंड टाइम की पावर से हमें मिलेगी 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस मिलेंगी। और 3 इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम 3 अननोन वैल्यूज, we can calculate maximum 3 unknown values, so we cannot establish relation among more than 3 physical quantities। तो बच्चों ये होते हैं कुछ इसके limitations। Now let us talk about some rules to find dimensional method, rules to find dimension। तो देखिए किस तरीके से अपन डायमेंशंस को फाइंड करते हैं। अब यहां पर बनते हैं बच्चों आपके पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं रूल नंबर 1 की बात करता हूं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? दैट quantities of similar nature, quantities of similar nature are added or subtracted। बच्चों वो ही क्वांटिटीज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके नेचर सेम हो। अगर छोटे से एग्जांपल से समझो, अगर मैं बात करता हूं कि भाई लेंथ है, तो बच्चों लेंथ में हम लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ में हम मास को ऐड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता 2 ग्राम प्लस 1 सेंटीमीटर, वी कैन नॉट से दिस। सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट अस से मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमें दे दिया एल माइनस एल्फा। तो यहां पर देखिए एल्फा की डायमेंशन पूछ लिया आपसे, किसी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में आपने देखा एल माइनस एल्फा और आपसे पूछ लिया डायमेंशन ऑफ एल्फा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि लेंथ में लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मींस एल्फा इज ऑल्सो लेंथ, ये चीज आपने बोल दी। सिमिलरली जैसे कहीं पर आपने बोल दिया एनर्जी प्लस बीटा और आपसे बीटा की डायमेंशन पूछ ली, तो बच्चों एनर्जी में हमने बीटा को ऐड किया, इट मींस बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सो ये होता है फर्स्ट आपका रूल। इसी रूल का सब पार्ट अगर मैं बोलूं तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन अमंग एनी क्वांटिटीज। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन among any nature of quantities या any nature। लाइक जैसे अपन देखते हैं फॉर्मूले, F इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एसिलरेशन। तो मास और एसिलरेशन दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई अपन इनको कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दोनों डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज हैं। सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन तो पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, यहां पर एग्जांपल आपको दे दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस सी, या सी की जगह चलो दे दिया गामा। ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों यहां पर, और क्या बोल दिया हियर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम, अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट, सो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए बच्चों ये सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन आपके रूल नंबर 1 से सोल्व हो जाएगा। यहां पर अभी मैंने क्या चीज बोली भाई, क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये चीज अगर आपको पता है तो देखो यहां पर अल्फा और टी ये तो दोनों डिफरेंट नेचर की हो सकती है, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये हमने किसी दूसरी क्वांटिटी में ऐड किया तो हमें मिल गई वेलोसिटी। इसका मतलब अल्फा इंटू टी भी
डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए वेलोसिटी के, और बीटा अपॉन टी प्लस गामा भी डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए वेलोसिटी के। लेकिन यहां पर देखिए जो टी प्लस गामा है, अगर अपन बात करते हैं यहां पर टी प्लस गामा की, तो बच्चों टी प्लस गामा में देखिए यहां पर क्या हो गया, ये जो टी प्लस गामा है, टाइम में हमने गामा को ऐड किया, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गामा। ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि तभी इसमें ऐड होगी ये। तो गामा के लिए तो सीधा बोल दिया हमने दैट इट इज T1। गामा के लिए बच्चों डायमेंशन होगी T1। अब गामा की T1 होगी तो दूसरी चीज क्या बोली हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल्फा इंटू टी। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर एल्फा का हमें निकालना है और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T1। T1 को अपन ने इधर ट्रांसफर कर दिया तो एल्फा इज इक्वल टू हो गया L1 T माइनस 2। तो यहां से हमें मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल्फा। एल्फा हमें मिल चुका, गामा हमें मिल चुका, हमें बीटा कैलकुलेट करना है। तो फिर से यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बोली, दैट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा अपॉन टी प्लस गामा, ये बोल दिया। तो वापस से मैंने बोला L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू, बीटा हमें निकालना है और नीचे टी प्लस गामा, पूरे फंक्शन का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू टाइम। सो बच्चों यहां पर बीटा की हमें डायमेंशन मिल गई L1। सो दिस इज ए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन रूल नंबर 1। चलिए बच्चों सेकंड रूल की बात करते हैं। देखिए सेकंड रूल क्या कहता है हमें यहां पर, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमें कहता है दैट एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके लिए बच्चों जो SI यूनिट है ये तो होती है रेडियन, और ये होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है M0 L0 T0। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये हमने इसकी बात करी, तो अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ इस एंगल को प्लेस करूं, दिस इज थीटा, दिस थीटा इज डायमेंशनलेस। तो बच्चों ये अगर डायमेंशनलेस है तो ये जो पूरा फंक्शन है, दिस कंप्लीट फंक्शन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो ये साइन के लिए नहीं है, इट इज फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इधर इट इज साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एनी फंक्शन। ये हो गया यहां पर डायमेंशनलेस। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, किसी की भी बात करूं। चलिए बच्चों इस पर बेस्ड एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं। लेट अस से you are given a equation y is equal to a sin alpha t plus beta x, alpha t plus beta x, and you have to find dimension of alpha and beta। तो यहां पर देखिए एक चीज जो अभी मैंने बताई यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थिंग, कि भाई ये जो पूरा है ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एंगल को। इट मींस डायमेंशन ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल, एंड डायमेंशन ऑफ एंगल क्या होती है, M0 L0 T0 मींस इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू M0 L0 T0। दूसरी चीज ये देखिए, अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड तभी होगी जब एंगल के इक्वली इनकी डायमेंशंस होंगी। इसका मतलब क्या बोल दिया, और वी कैन से दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू M0 L0 T0 and it is also equal to dimensional formula of beta x। मतलब alpha t and beta x both are dimensionless, we can say। so from here calculate dimension of alpha। तो बच्चों alpha के लिए तो डायमेंशन होगी t माइनस 1, एंड बीटा के लिए अपन कैलकुलेट करें तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज l माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा।
सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया रूल नंबर 2 पे। तो इस तरीके से बच्चों अपन डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कई पैटर्न के क्वेश्चंस यहां पर होते हैं जिस तरीके से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, बच्चों नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहां पर एरर, एरर इन मेजरमेंट। तो देखिए मेजरमेंट में एरर किस तरीके से होती है, लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक। सबसे पहली चीज तो हो गई एरर। तो एरर क्या होता है, देखिए सुनने में बड़ा यूं लगता है कि एकदम से इजी है। एरर कुछ भी बोले हैं तो अपन बोलते हैं कि सर वॉट एवर वी डू रॉन्ग दैट इज एरर। सो वो रॉन्ग क्या है, वो जो आपने गलत किया है वो है क्या, यहां पर फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे। तो वो जो एरर होती है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, तो इसको बड़े सिंपल से एक एग्जांपल से समझो। लेट अस से कि भई ये आपका कोई पेन है और इस पेन की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और आपको मीटर स्केल दे दिया जाए और आप इसकी लेंथ मेजर करते हो। तो कभी आप इसकी लेंथ मेजर करके बताते हो 15.2 सेंटीमीटर, कभी बताते हो 14.9, कभी 15.1। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ये अलग अलग वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर अनसर्टेनिटी को। सो दीज अनसर्टेनिटीज इन एनी मेजरमेंट आर नोन एज एरर्स। इनको अपन क्लासिफाई करते हैं बच्चों इन फॉर्म ऑफ एरर। अब ये एक चीज हो गई। अब एरर पे सीधे अपन बात करते हैं क्वेश्चन कहां पर बनते हैं। तो बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को बच्चों अपन डेल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल। और यहां पर जो भी क्वांटिटी है आपकी वो, लेट अस से मैं यहां पर क्वांटिटी ले रहा हूं कोई ए। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी मैं इस मार्कर की लेंथ की बात कर रहा था, 15 सेंटीमीटर है, और मेजर करने पे कभी 15.1 आ रही थी, कभी 14.9 आ रही थी। तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू तो हमेशा ही फिक्स है। अब उसमें से जो जो आपने मेजरमेंट किया उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी वहां पर एब्सोल्यूट एरर। ये इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। सो इफ एक्चुअल वैल्यू इज नॉट गिवन, इफ एक्चुअल वैल्यू इज नॉट गिवन, देन मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, mean of measured values is considered as actual value। तो बच्चों उस सिचुएशन में इसको हम कंसिडर करते हैं एक्चुअल वैल्यू। ये एक चीज अपन ने बात करी यहां पर। तो लेट अस से हमने बोल दिया कि भाई मेजर्ड वैल्यूज हैं A1, A2, A3 अप टू AN, ये सारी हैं आपकी मेजर्ड वैल्यूज। तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू जिसको आप मीन बोल रहे हो, मीन वैल्यू बच्चों हो गई ए बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। तो यहां से मिल गई आपको एक्चुअल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू। तो अब देखो देखो बच्चों यहां पर आप, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है A1 के लिए तो आप बोल दोगे डेल A1 इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू A बार माइनस मेजर्ड वैल्यू कौन सी होगी A1। सिमिलरली A2 के लिए डेल A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2। तो इसी तरीके से आप सारी क्वांटिटीज के लिए यहां पर एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल फॉर्म मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए बार से। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज मीन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। तो जो भी एब्सोल्यूट एरर्स मिली है उनके मॉड्यूलस का मीन।
तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर्स में बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट while taking their mean we consider only their magnitude. So this is the relation to calculate mean absolute error, that del a bar is equal to mod of del a1 plus mod of del a2 up to mod of del an and divided by number of terms n. नेक्स्ट यहां पर अपन बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो रिलेटिव एरर क्या होती है बच्चों? अब देखिए रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जब भी अपन बात करते हैं, देन रिलेटिविटी इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू। सो हियर रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर विथ रेस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू क्या बोली बच्चों अपन ने यहां पर? ए बार। एंड नेक्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म इज परसेंटेज एरर। इट इज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो गया बच्चों यहां पर? रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर इंटू 100 is known as percentage error. So its formula is del a bar divided by a bar into 100. So these are four relations which are used to calculate absolute, mean absolute, relative and percentage error. Now see, ये एक पैटर्न हो गया बच्चों। यहां पर दूसरा पैटर्न यहां पर क्या कैलकुलेट करते हैं हम? एरर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से एरर्स को आप कैलकुलेट करते हो। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट लेट अस से कि भाई अपने पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है एक्स और वाई, इन दोनों को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एक रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल गई जेड। This z is acquired either by addition of x and y or by subtraction of x and y. So if I say that there is error in x and y, बच्चों अगर x and y में अगर कोई एरर है तो सीधी सी बात है कि इनका रिजल्टेंट है z, तो z में भी एरर होगी। तो यहां पर जो एरर होती है वो होती है एब्सोल्यूट एरर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एरर होती है बच्चों वो होती है एब्सोल्यूट एरर। तो z में एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई? प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस डेल y। प्लस माइनस क्यों लिया? अभी मैंने आपको पीछे जब इनके एब्सोल्यूट एरर्स के रिलेशन बताए थे तो मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो प्लस माइनस दोनों सिंबल अपन यूज करते हैं। तो यहां पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरर इन z, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई? 4। तो 4 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, 4 पॉसिबल वैल्यूज। बट मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर देखो 4 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। लेकिन मैक्सिमम कब होगा? जब डेल एक्स और डेल वाई दोनों होंगे प्लस के। सो इट मींस डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। del z is equal to del x plus del y. This is maximum absolute error while adding or subtracting two quantities. तो बच्चों ये एक यहां पर रिलेशन हो गया। इसी में दूसरा अपन बात करें तो एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में किस तरीके से निकलती है एरर्स? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो देखिए यहां पर किस तरीके से एरर्स निकलती है। लेट अस से x एंड y दो फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको मल्टीप्लाई किया तो कोई रिजल्टेंट मिल गया आपको z, या आप इसको कह सकते हो कि x को y से डिवाइड किया तो आपको रिजल्टेंट मिल गया z। तो जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात होती है तो बच्चों यहां पर निकल के आती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर का भी कॉन्सेप्ट बताया अपन ने, मीन वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, डेल जेड अपॉन जेड। फिर से यहां पर 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी तो ये बोल दिया हमने प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई। ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें अपन तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर हो गई डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। So this is the way by which
एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज कैन बी कैलकुलेटेड। बच्चों इसी में आप परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज के लिए फॉर परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड्स। बच्चों दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगी यहां पर परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। अब इसी तरीके से और क्वेश्चन कहां पर बनते हैं, तो बच्चों पावर पे भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो एरर इन पावर्स, पावर्स में देखिए किस तरीके से एरर्स होती है। लेट अस से कि भाई कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x जिसकी पावर है a और इसका रिजल्टेंट आपको मिल गया z। सो इफ आई से कि भाई यहां पर x में अगर कोई एरर है तो डेफिनेटली देयर विल बी एरर इन z ऑल्सो। यहां पर भी आपको मिलती है रिलेटिव एरर, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना होता है वो ये है कि रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो इस पावर को। तो ये हो गया प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया बच्चों यहां पर। दूसरा फॉर्मेट देखिए इसी में, लेट अस से कि आपको दे दिया जाए यहां पर x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर b, कुछ इस तरीके से दे दिया जाए। तो जनरली बच्चे यहां पर गड़बड़ क्या करते हैं कि ये जैसे डिवीजन में आए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना। आपको जब भी यहां पर रिलेटिव एरर निकालनी है तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू a इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स, और यहां पर नीचे वाले को भी आपको एडिशन में ही लेना है, प्लस b डेल y अपॉन v। So this is the way by which errors are calculated in mathematical form in any measurement। चलिए एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से देखते हैं इस चीज को। तो ये कोई एक क्वेश्चन में ले रहा हूं बच्चों। लेट अस से P इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी डी। यू आर गिवन अ रिलेशन P इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी डी, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज एरर्स इन A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively। और आपसे पूछ लिया फाइंड परसेंटेज एरर इन P, P में परसेंटेज एरर बतानी है। ये बच्चों क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटेटिव सेक्शन में पूछा हुआ है। तो देखो यहां पर आप निकालोगे तो देखा आपने कि भाई ये अभी जो पीछे पावर्स वाला हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, एरर इन पावर्स, वो वाला यूज हो रहा है। सो डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस डेल डी अपॉन डी। ये हो गया बच्चों रिलेशन। परसेंटेज निकालने के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दैट मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आपने लेफ्ट में 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया डेल पी अपॉन पी इंटू 100। तो ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू, यहां पर देखिए जैसे ही मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया पूरे फंक्शन को तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो गए। सो डेल ए अपॉन ए इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन ए, और ए में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है, 1%। सो 1 इंटू 3 हो गया यहां पर 3, फिर प्लस 3 इंटू डेल बी अपॉन बी इंटू 100। तो डेल बी अपॉन बी इंटू 100 का मतलब हो गया परसेंटेज एरर इन बी, और परसेंटेज एरर इन बी कितनी हो गई बच्चों, 2%। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100, इट मीन्स परसेंटेज एरर इन सी। सो सी में परसेंटेज एरर हो गई 3, सो ये हो गया प्लस 3। एंड अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज एरर इन डी तो वो आपको दी हुई है 4, तो ये हो गया 4। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल यहां पर जो टोटल परसेंटेज एरर आपको मिली दैट इज 16%। 16% एरर मिल गई बच्चों यहां पर। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन की अपन बात करें। तो दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। आपको बोल दिया परसेंटेज एरर इन रेडियस
ऑफ अ स्फेयर इज 2%। किसी स्फेयर की रेडियस में आपको 2% एरर बोल दी और आपसे पूछ लिया परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों क्या गिवन क्या है आपको, डेल आर अपॉन आर इंटू 100, ये आपको गिवन है कितना 2, और आपसे एरिया और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछिए। तो एरिया एरिया हो गया कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर का एरिया होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। सो यहां पर 4 पाई तो है कांस्टेंट, इसका मतलब डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू हो गया 2 × डेल आर अपॉन आर। परसेंटेज के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो जैसे इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100 क्या हो गया बच्चों, परसेंटेज एरर इन आर। सो 2% ये दी हुई है, 2 × 2 कितना हो गया 4%। तो एरिया में तो कितना हो गया 4% एरर, और वॉल्यूम में कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो बच्चों यहां पर रेडियस की पावर है 3, सो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 3 टाइम्स of percentage change in radius. So from here we can say that it is 3 × 2 6% change or 6% error in volume of this sphere. So बच्चों ये अपन ने बात करी यहाँ पर किस तरीके से मैथमेटिकल एरर पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यहाँ पर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया क्या यूनिट डायमेंशन होती है, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एंड व्हाट आर एरर्स एंड देयर मैथमेटिकल फॉर्म, एंड हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।